Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, we start revision of chapter 10. Okay, reaching the age of adolescence. Okay, today we revise exercise of the chapter. So, our first question is, what is the term used for secretion of endocrine glands responsible for changes taking place in the human body? ओके, तो क्या बोलते हैं इस टर्म को? अच्छा, एक साथ नहीं बोलेंगे, अपना हैंड रेज करेगा, ठीक है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द secretion of the endocrine gland? क्या है वो टर्म? नो वन विद दी आंसर बताओ, क्या है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिद्धि, कशिश, बता बेटा। बेटा, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, कशिश, क्या है इसका आंसर? हार्मोन्स, ठीक है ना? हार्मोन। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं? हेलो, बेटा वॉइस क्लियर है? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो फिर आप लोगों की आवाज नहीं आ रही बेटा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन एडोलेसेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडोलेसेंस? कौन बताएगा? कशिश, मैम मैं बताऊं? Natural changes. It is a period of time when a body और कोई बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए, मैं नहीं, बताना चाह रहा है। मैम रेज योर हैंड, मैं नहीं। मैम कौन? मैम फलक जकी। हाँ बताओ। The life of period, the period of life when the body undergoes changing, leading to the reproductive maturity is called adolescence. वेरी गुड, ओके, दैट इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा। और कोई ट्राई करेगा? सही बताया फलक ने। मन हो गया बेटा, पढ़कर आई हो कि नहीं? आयुषी, चैप्टर प्रिपेयर किया कि नहीं? देखिए, एडोलेसेंस क्या है, मतलब कि बिल्कुल सही बताया। एडोलेसेंस इज द टर्म, है ना, क्या है, विच इज यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है एंड एडल्टहुड। प्यूबर्टी से एडल्टहुड के बीच में एक स्टेज होता है, दैट इज नोन एज एडोलेसेंस। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ओके, alongside reproductive maturity, और reproductive maturity आती है। It begins around the age of 11 year से start हो जाता है and last till 18 years, okay, 18 to 19 years of the age. Third question है अपना, what is menstruation?
What is menstruation? बताओ बेटा कशिश। If the fertilization does not occur, the release and the thickened lining of uterus, along with its blood vessels shed off. This causes the bleeding in women, uh, which is called menstruation. गुड, वेरी गुड, सही बताया है। तो और कोई ट्राई करेगा बेटा? कशिश ने आंसर सही दिया है। एक बार सुन लीजिए आप लोग। Menstruation is the process of shedding of uterine lining, है ना? Breaking, shedding, breakdown. Okay, uterine lining on a regular monthly basis. It begins at puberty, and is the reproductive cycle of the female body. ठीक है? Every month in menstruation, every month the uterus prepares itself to receive the fertilized egg. जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, ठीक इसी समय इसकी प्रिपरेशन होती है। देयरफॉर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक हो जाती है एंड इज सप्लाइड विद ब्लड टू न्यूरिश द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नूरिशमेंट करने के लिए ये प्रिपेयर होती है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन fertilization takes place. What is fertilization? That is the fusion of between male and female gametes. If fertilization not occur, यदि fertilization नहीं हुआ है egg का, तो क्या होगा? Then the lining of the uterus breaks down, टूट जाती है and gets released in the form of blood through the vagina, and this is known as menstruation. Okay. Next question है, list changes in the body that take place at the puberty. Puberty में कौन-कौन से changes आते हैं body में? Okay, वो आपको बताना है। List changes in the body that take place at puberty. कौन बताएगा? सिद्धि, नाम बताओ बेटा। Ma'am, sudden increase in height and weight. Yes. Second, ma'am, broadening of shoulders and widening of chest in boys. In girls, the region below the waist become wider. Very good. Ma'am, फिर appearance of hair in areas such as underarms, legs, face and hands. Good. Appearance of acne as a result of excessive secretion of oil from skin. Very good. Testis grows and starts producing sperm in males, whereas in females the ovary enlarges and starts producing matured egg. Very good. यही सारे changes हैं, है ना? सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, Yes, ma'am. हाइट बढ़ती है, sudden increase in height and weight. Okay. Boys में broadening of shoulders जो है broad हो जाते हैं। Okay. In girls में region below the breast become wider. Okay, में appearance of ठीक है, आप इसमें देखेंगे secretion स्टार्ट हो जाता है, application of acne, आप फेस में acne और pimples वगैरह हो जाते हैं, है ना? That is a symbol of puberty. Okay, sign of puberty, और ये सबको होते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा। टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ओवरीज में एक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रिपेयर टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय देम। एक टेबल बनाना है, एक तरफ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दी गई है, दूसरी तरफ आपको हार्मोन दिया गया है। तो हम टेबल नहीं बनाएंगे, अब एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी, जिसको आता है वो ही बताएगा। ठीक है, और चीटिंग कोई नहीं करेगा, किसी के आगे घर में बुक खोल के नहीं बैठेगा। तो इसका चीटिंग करने से आपको कोई नहीं होगा, पढ़ कर आइए, तब तो रिवीजन का मतलब है ना?
तो टेस्टिस, अब ये बताएंगे टेस्टिस विच हार्मोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। कौन बताएगा टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? जी, testosterone, टेस्टोस्टेरोन, गुड। देन थायराइड, थायराइड thyroxine, एक ही लोग नहीं बताएंगे, मतलब सबको मौका भी देना है, यदि कोई नहीं बताता फिर आप बताइए, ठीक है। थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। पैनक्रियास, ma'am insulin, सीक्रेटेड बाय द ma'am पैनक्रियास, insulin, insulin ma'am, इंसुलिन। insulin, और जो भी आंसर दे रहा है अपना हैंड प्रेस करेगा, इसके बाद आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? Ma'am, growth hormones. ग्रोथ हार्मोन, वेरी Ma'am, गुड, growth hormones. यस वेरी गुड। ओवरी, ovary ma'am, ओवरी, ma'am estrogen, ma'am estrogen, Ma'am, estrogen. वेरी गुड। एड्रिनल, क्या ma'am, एड्रिनल Ma'am, ग्लैंड, adrenaline. Ma'am, एड्रिनल, adrenaline. ma'am adrenal, हाँ एड्रिनलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना व्हाट आर द Excuse me, सेक्स ma'am. हार्मोन्स, Excuse व्हाई me, आर ma'am. दे नेम सो, इसका नाम ऐसे क्यों रखा, स्टेट देयर फंक्शन, और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला एक Ma'am, क्वेश्चन है व्हाट आर सेक्स हार्मोन, तो कौन बताएगा? श्रेया, ma'am, मैं बताऊं? Yes, ma'am. यस बताओ ना। Ma'am, sex hormones are chemical substances produced by sex organs. यस, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है व्हाई आर दे नेम सो, श्रेया बताएगी। Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, testosterone is the male sex hormone produced by the testis, and estrogen is the female sex hormone produced by the ovary. So, ठीक है, ma'am, these hormones affect the sexual features of an organism. और That's why बताइए, they are known as sex hormones. ठीक है, गुड। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, एडोलसेंट, ऐसे नहीं बोलेंगे, जिसको बताना है वो हैंड रेज करेगा और सबको बताना है, ठीक है। 2 ही 3 लोग बता रहे हैं, बाकी लोग साथ बैठे हुए हैं, है ना। Adolescents should be careful about what they eat because, क्यों, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन की जरूरत, कौन बताएगा? हाँ कशिश, Ma'am, because they need बिकॉज, because they need proteins because of the growth taking place in their body. नहीं बिकॉज, कौन बताएगा? श्रेया, क्या होगा इसका? बिकॉज प्रॉपर डाइट इज नीडेड Ma'am, फॉर because- the growth taking place in their body. Yes, ma'am. Proper diet. हाँ प्रॉपर डाइट, ओके। दूसरा है अपना रिप्रोडक्टिव एज इन ह्यूमन स्टार्ट व्हेन देयर, ma'am menstruation start, यस The व्हेन देयर menstruation मेंस्ट्रुएशन starts. स्टार्ट, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, the right meal for adolescents consists of, जो adolescents हैं उनके लिए right meal क्या होगा? ma'am, क्या होता है? Vegetables. कौन ma'am बताएगा? chapati dal vegetables, हाँ, इसके लिए होता है चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स, गुड। अब ये है, इसमें आपको नोट, शॉर्ट नोट है ना, इनकी डेफिनेशन आपको शॉर्ट में बतानी है।
तो पहला है अपना एडम्स एप्पल। व्हाट इज एडम्स एप्पल? फलक। मैं बताऊं मैं बताओ। the growing box present in the boy thought in during the puberty is known as Adam's apple. ठीक है, और वो अच्छे से पढ़ो, बता रही हूँ, मालूम है। ठीक है, मैम एप्पल। ठीक है, और कौन बताएगा? मैम सिद्धि। मैम सिद्धि। मैम मेल्स। हाँ, मैंने मैम Ma'am, in males, the larynx grows larger. हाँ, Ma'am, in males, the larynx grows larger during puberty and can be seen as a protruding part of the throat. This protrusion is known as the Adam's apple. ठीक, गुड। देखिए सही है। तो एडम्स एप्पल में the larynx grows larger, producing क्या करता है? during puberty and can be seen as protruding part of the throat। यहाँ पर बाहर निकला हुआ दिखाई देता है प्रोट्रूजन में। कि बॉयज में इसका साइज जो है वो थोड़ा सा लार्ज होता है और गर्ल्स के केस में ये स्मॉल होता है। इसीलिए बॉयज में जो Ma'am, होता है दैट इज हॉर्स, यानी भारी आवाज, ग्रेव साउंड होती है। और गर्ल्स में या वुमेन्स में बोले या चाइल्ड के केस में देखें तो श्रिल साउंड, ये वॉइस बॉक्स की वजह से होती है। जो वॉइस बॉक्स है ना, जो लैरिंक्स है, यहाँ पर एडम्स एप्पल बनाता है अपना, तो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं और चिल्ड्रन के केस में हमें श्रिल साउंड सुनाई देती है और वॉइस में या मेंस में हमें भारी आवाज सुनाई देती है। दैट इज due to Adam's apple. Is that clear? Yes ma'am. ठीक है, आगे देखिए। अब ना है नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मैम मैं बताऊं? हाँ बता बता बोला। Mustaches in the puberty age, mustaches in the face of a male and bust size will developed in girl. These features distinguished in female and male. These features are called secondary sexual characters. ठीक, गुड, ओके। मैम मैं बताऊं? हाँ, और कौन बताना चाह रहा है? Raise your Ma'am, hand. ma'am, can I? Raise your hand. Okay. श्रेया बता बता। Yes, ma'am. Ma'am, can I? Can I? Ma'am, in boys, appearance of moustaches and beard, appearance of chest hair, and growth of hair in genital area and other parts of the skin. And ma'am, in sexual characters in girls are increase in breast size and darkening of the skin of nipples present at the tip of the breast. And the second one is ma'am, growth of hair in. ठीक है, गुड, सही बता रहे हैं। थर्ड अपना है शॉर्ट आंसर, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन इन एन अनबॉर्न बेबी। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो होने वाला बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, है ना? तो पता चलता है। सिद्धि। Yes, ma'am. Ma'am, the sex of the baby is determined by the type of male gamete fuses with the female gamete. All human beings have 23 pairs of chromosomes in their nuclei. Out of these 23 pairs, the last pair is known as sex chromosomes. In human males, there are XY sex chromosomes, and in female, there are only X chromosome. Good. Then Females have 23 pairs of chromosomes, including XX sex chromosomes. Male gamete can be of two types, 22 plus X or 22 plus Y. okay. Then thus as mother provides only X chromosome. फीमेल के एक्स क्रोमोसोम है, मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होते हैं गर्ल चाइल्ड, एक्स एक्स गर्ल चाइल्ड बनेगा। जब फीमेल और मैम एक्स वाई से मिले तो वाई क्रोमोसोम
That's why मैम बॉय बनेगा। बॉय बनेगा। So we can say that the sex determination, Ankur, sex determination क्या होगा? The sex of the baby is determined by the type of male gamete. Okay, जो कि XY है, क्योंकि जब Y X फीमेल के X के साथ यूज होता है तभी क्या होता है? बॉय चाइल्ड बनता है। Excuse me, ma'am. Yes? Ma'am, I have a question. हाँ? मैम मेल गैमेट के पास या तो एक्स क्रोमोसोम रहेंगे या वाई क्रोमोसोम रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। मेल में एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आपकी एक पजल है वो आप कर लेंगे और नीचे एक ग्राफ दिया गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी इंफॉर्मेशन मैं दूंगी आपको। उसके लिए आप जो आपका चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इस चैप्टर के बीच से छोटे-छोटे एमसीक्यू बनाएंगे, है ना? Good पूरे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, जितने छोटे-छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यू के रिवीजन करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, बाय। मैम बाय। Excuse me मैम। हाँ हाँ, मैम एड्रेनलिन का क्या मैम वर्क होता है? क्या बेटा? मैम एड्रेनलिन का वर्क ये भी एक हमारी बॉडी में। ग्लैंड है यस मैम। जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनलिन हार्मोन। और मैम ये स्ट्रेस को भी एडजस्ट करती है। हाँ, मैम एड्रेनालिन का वर्क क्या होता है? जैसे यस मैम, व्हाट इज द वर्क? मैम हमारी बॉडी को किस टाइप से अफेक्ट करती है? मैम ये हार्मोन्स को हमारी बॉडी में हाँ समय-समय पर सीक्रेट होते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन का भी सीधे जो इफेक्ट है हमारे ग्रोथ से होता है। ठीक है, बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है ना? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या बेटा? मैम गुड मॉर्निंग कर रहा है। अबे यार हो गया, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब तो क्लास है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में आप एमसीक्यू तैयार करके आएंगे इसी चैप्टर पे। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, बाय। मैम गुड बाय।